Hello dear students, welcome to the class today. So children, as you know, we are carrying on with this second chapter, economics, where we are talking about the sectors of Indian economy. Gradually and slowly, the topics that we are doing, we are discussing all these topics from the board point of view. Right now, what we are discussing is, we are discussing about the primary, secondary and tertiary sectors contribution in the Indian economy. In the Indian economy, the primary, secondary and tertiary, these are the three sectors जिनको मिला के the final economic countdown is there. The final GDP is calculated, and in that the important role is played by the काफी ज़्यादा, I mean on a very large scale, important role is played by the different sectors, and in the economic development of the country, all these sectors are equally important. Now children, what is important is, कल हमने discuss किया कि in the past 40 years, actually it's the calculation of the past 40 years where we have tried to understand that tertiary sector is gaining importance on a very large scale. टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही है. इन दैट वी हैव अंडरस्टूड द वेरियस कॉजेस. पहला तो जो हमने कॉज डिस्कस किया था, द फर्स्ट थिंग वाज दैट आई एम डिस्कसिंग इट फॉर द सेकेंड टाइम. आई एम डिस्कसिंग इट फॉर द पर्पस दैट you need to understand the sectors properly. और इसी में जो चीज आपको समझना है वो ये समझना है कि टर्शरी सेक्टर क्यों ग्रो हुआ इतना. फर्स्ट थिंग वाज दैट कि सेवरल सर्विसेज हैव बीन डेवलप्ड. हमने क्या क्या डिस्कस किया? हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन. मतलब in the past 20 years the service sector has seen a boom. 20 years नहीं, 40 years. सर्विस सेक्टर हैज सीन अ बूम. मीन सर्विस सेक्टर काफी तेजी से ऊपर गए हैं. ये जो है इसको हम बेसिक सर्विसेज कहते हैं, जिसके बिना आज हम नहीं सोच सकते. 40 इयर्स पहले भी सोच सकते थे, क्योंकि 40 इयर्स से पहले काम ऐसे ही चल रहा था. the work was being carried on in this manner only. ऐसे ही काम हो रहा था सिंपल लैंग्वेज में when I'm talking. But nowadays क्या हम बैंक के बिना लाइफ सोच सकते हैं? नो. Insurance companies, transport, defense, these all are part and parcel of our lives. हमारी जिंदगी इनके बिना बिल्कुल भी नहीं चल सकती है, and that's a fact. So when we understand, उसके बाद जो second thing was there कि agriculture and industry have developed. काफी. Yesterday I have shown you some graph which had been shown. उसमें हमने देखा how drastically the secondary and the tertiary sectors have gone up. तो secondary and tertiary sectors जो ऊपर गए हैं उसका कारण हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. Other services, सेकेंडरी, क्योंकि एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, तो इसमें क्या है कि सर्विसेज की जरूरत है. मोर एंड मोर सर्विसेज आर रिक्वायर्ड, जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेड है एंड स्टोरेज है. भाई व्हीट ग्रो हो गया एग्रीकल्चरल फील्ड में, राइस ग्रो हो गया एग्रीकल्चरल फील्ड में, मार्केट तक लेके उसको कौन आएगा? गाड़ियां तो चाहिए. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इज नीडेड. दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर. तुरंत हमको देख लेना है कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल. ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जब मैनेज हो जाती हैं, व्हेन ट्रांसपोर्टेशन इज देयर, फिर उसको गोडाउन में ले गए. अब जैसे आजकल बारिश का सीजन है, कैन वी कीप द राइस एंड द व्हीट इन द ओपन? नो. स्टोरेज फैसिलिटीज हैव टू बी देयर. उसको प्लास्टिक से ढकना है, बड़े बड़े कमरे बनाने हैं, इस तरह का गोडाउन बनाना है जहां पे कि ये व्हीट एंड राइस स्टोर करके रखा जा सके. ओके, तो जब ये सर्विसेज डेवलप हो गई तो सेकेंडरी सेक्टर का ग्राफ ऊपर चला गया.
because all these things are happening in the secondary sector. Jitna country will develop, greater the development of the primary and secondary sector, utna hi such services would be in demand. अब क्या हुआ, इनकम लेवल बढ़ गया, लोगों का पैसे आने लग गए ना, इतना काम करेंगे, so much of work they are doing and they are involved in the different sectors. हर जगह में जब इतनी हाई स्केल की इन्वॉल्वमेंट है तो इनकम लेवल जो है वो बढ़ गया. People are working 8 to 10 hours a day, 10 to 12 hours a day. तो obviously income level has risen and certain section of people, कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई पैसा इतना आ गया है तो पैसा खर्च भी तो कहीं करेंगे. Some money has to be spent also. क्या करेंगे? खाना अच्छा अच्छा खाएंगे, ईटिंग आउट, अच्छी अच्छी जगह पे घूमने जाएंगे, टूरिज्म, शॉपिंग. बीमार अगर पड़ गए तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे. प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर इंक्रीजिंग, स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स आर इंक्रीजिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग इज हैपनिंग. दिस प्रोफेशनल ट्रेनिंग दैट इज हैपनिंग, ठीक है, प्रोफेशनली पीपल आर बिकमिंग मोर क्वालिफाइड, मोर ट्रेन्ड. तो क्या होगा कि आगे के लिए बहुत आराम हो जाएगा. The people will be gaining on a very high scale in the professional manners. काम अच्छा मिल जाएगा ना. Human resource development, more and more good work is there, so this good work will give good money and people will have a very good life, isn't it? That is there. Tertiary sector की importance देखो. अब स्पेशली ये जो चीज है ना, ये हमको गांव में नहीं नजर आ रहा है. गांव के लोग आज भी रोटी बना के, सब्जी बना के, दाल चावल के साथ खाना पसंद करते हैं. बट बिग सिटीज आर फाइंडिंग दीज चेंजेस. बड़े बड़े शहरों में ये जो है चेंजेस हमको बहुत ही एविडेंटली नजर आ रहे हैं. गॉट इट? तो ये तो हो गया 3 कारण. एक और है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर, द वे इट इज इंप्रूविंग. वन मोर रीजन इज देयर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब चलो उसको देख लेते हैं. अब ये क्या है? What is that? This is the past decade or so, मतलब पीछे 10 सालों में क्या हुआ है? Information technology has gained importance. This is the 4th reason of the importance, growth in the importance of tertiary sector. It is in past decade, 10 सालों में information technology has gained importance. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ना, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है. बढ़ती क्या जा रही है? इट्स वेरी एविडेंट. ये देखो ना, हम सामने में बातें कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग, टुडेज टाइम वी आर इंटरैक्टिंग. क्या है ये? दिस इज ऑल इज व्हाट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. जरूरी हो गया है. इट इज नीडेड, इट इज एसेंशियल एंड इट इज इम्पॉर्टेंट. आज के बिना तो काम ही नहीं चल सकता. स्कूल नहीं जा रहे हैं लेकिन क्लासेस चल रही हैं. चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं? दैट इज व्हाट इज देयर. दैट इज हाउ इतना इंपॉर्टेंट हो गया है. पहले तो घर घर में मोबाइल होता था. इन एवरी हाउस देयर यूज्ड टू बी मोबाइल. आज क्या है? बच्चे बच्चे के पास मोबाइल है कि नहीं है? यस, एंड दैट्स द फैक्ट. ओके, तो अब आप देख लो, यू लुक एट द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. किस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज गेन्ड इट्स ग्राउंड एंड प्रोडक्शन. ये जो सारी सर्विसेज हैं, प्रोडक्शन, द all these services has been rising rapidly. Production of all these services has been increasing rapidly. ये इंक्रीज रैपिडली कर रहा है क्योंकि इसके बिना अब काम नहीं चल सकता है.
That is how we need to understand. Can we work without mobile? Can we work without information technology? Can we work without all these electronic equipments that are part and parcel of our lives? कितना important हो गया है. We cannot imagine life without these facilities that is there. And अब इसके बारे में और भी these new services के बारे में further there are chapters जिसमें we will be talking about these new services that have come up. तो ये सारी चीजें, all these things we have to remember कि when we are understanding these in detail कि not all the services is growing equally well. सारे services, all the service sector is not growing well. Tertiary sector इतना ऊपर चला गया है तो primary नीचे भी तो आ गया है. I discussed it in the last video कि primary अगर नीचे आ जाएगा it would be an alarming situation, my dear children. खाना वहीं से आ रहा है. We are getting our food right from the agricultural field to our houses. Agricultural field से खाना हमारे यहाँ अगर पहुंच रहा है तो हमको ये देखना है कि agricultural fields are working properly. अगर वहां से सारे लोग भाग के टर्शरी में आ जाएंगे, हु आर द पीपल हु विल बी डूइंग दिस फार्मिंग बिजनेस, और खाना कहां से आएगा? दीज पीपल, क्या हो रहा है कि देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स. देयर आर लिमिटेड सर्विसेज that employ highly skilled and educated workers. Highly skilled and educated workers. बहुत कम ऐसी जगह है जहां पे कि बहुत पढ़े लिखे और बहुत ही स्किल्ड हैं, आईटी के सुपर नॉलेजेबल. तो आईटी सेक्टर्स हैं ही कितने? अभी तो लिमिटेड, अभी थोड़ा इंक्रीज कर रहा है. नाउ इट्स इंक्रीजिंग बट वंस अपॉन ए टाइम इट वाज लिमिटेड. तो उसमें कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी? आप जब तक उतना पढ़ोगे नहीं, टिल यू आर एजुकेटेड टू दैट लेवल, यू कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन दोज सेक्टर्स. तो आप एजुकेटेड तो हो नहीं, यू आर स्टेइंग इन द विलेजेस. आई एम टॉकिंग ऑफ द जनरल सिचुएशन, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ यू. पीपल हु आर स्टेइंग इन द विलेजेस, कोई काम नहीं मिल रहा है तो कुछ नहीं मिल रहा है तो एग्रीकल्चर तो है ही है. फाइनली इट इज एग्रीकल्चर विच इज देयर. And on the other hand, large number of workers are engaged in services. Large number of workers are engaged in किस काम में इन्वॉल्व है? ज्यादा से ज्यादा लोग, more and more people are engaged in services such as small shopkeepers, repair persons, रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, रिपेयर पर्सन है, ट्रांसपोर्ट पर्सन एटसेट्रा. ट्रांसपोर्ट पर्सन एटसेट्रा. गॉट इट? ट्रांसपोर्टेशन में भी काफी सारे लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, गाड़ी चलाने का काम तो कर ही लेते हैं, ठीक है, ट्रक चलाने का काम या इस तरह का, दिस काइंड ऑफ वर्क, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व. वी कैनॉट इग्नोर दिस फैक्ट. इस चीज को हम मना नहीं कर सकते. ओके तो क्या है कि दे आर अनेबल टू मैनेज टू अर्न अ लिविंग एंड येट दे परफॉर्म बिग सर्विसेस. दे आर अनेबल टू अर्न अ लिविंग एंड क्या होता है, येट दे परफॉर्म दिस सर्विसेस. ये सारा काम ये करते ही हैं. पैसा उतना नहीं मिल रहा है कि पूरे दिन का काम चल पाए, पूरे दिन का इनका जुगाड़ हो पाए.
पूरा इनका खर्चा निकल पाए, लेकिन इनके पास देयर इज नो ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क आर अवेलेबल टू देम। काम करने के लिए है ही नहीं, तो जो भी काम मिल रहा है कर रहे हैं। हाईली एजुकेटेड नहीं है कि आईटी सेक्टर्स में जाके काम कर पाए, एंड इसलिए दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इन इंपॉर्टेंस, ओनली पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इन इंपॉर्टेंस। इसके बारे में और भी पता चलेगा। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूं चिल्ड्रन, दैट वेयर आर द पीपल इन्वॉल्व, किस जगह पे ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। इस चीज को मैं आपको बुक में ही दिखाऊंगी, बिकॉज इट इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 2 ग्राफ। 2 ग्राफ के मदद से एक्सप्लेन किया गया है बुक में। सो आई नीड टू डिस्कस दीज ग्राफ्स विथ यू। कम लेट्स सी। So students, tertiary sector has grown in importance. Tertiary sector and the people who were involved, primary and secondary छोड़ के जो लोग आ रहे थे tertiary में ही जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे there was a big problem कि tertiary sector में to get involved in the tertiary sector a person needs to be very educated, बहुत ही पढ़े लिखे होंगे, then only देखो just this is what is mentioned here. I wanted to show it to you in the book itself. Children, this chapter is very important. All the facts and figures in this chapter, you need to note down all that. Please remember that. So limited number of services were there. Highly skilled and educated workers were there on one side, and दूसरी तरफ क्या था कि वर्कर्स वेयर एंगेज्ड इन सर्विसेज, जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन, ये क्या थे ना, किसी तरह से अपनी ज़िंदगी चला रहे थे। दीज पीपल बेयरली मैनेज टू अर्न अ लिविंग एंड येट दे वेर परफॉर्मिंग दीज सर्विसेज। काम तो करना है, चाहे बिकॉज यू हैव टू वर्क फॉर इधर यू अर्न 500 रुपीज़ और 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ भी मिल रहे हैं अगर 500 की जगह पे, दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। सो नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ वॉज देयर फॉर वर्क आर अवेलेबल टू देम, सो ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज़ ग्रोइंग इन इम्पॉर्टेंस। थोड़ा बहुत जो है इट वॉज ग्रोइंग, एंड इसके बारे में और भी हमको पता चलेगा, लेकिन फिर भी टर्शियरी सेक्टर में काफ़ी सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। One thing that is here important, graphs were there which I needed to discuss the graph. For that purpose I have taken this mode of discussion. Primary is there, secondary is there and tertiary is there. ज़्यादातर लोग कहाँ पे employed थे? Which sector was employing maximum number of people? तो हमको ग्राफ 2 देखना है, जिसमें we are seeing the 3 sectors in GDP. Yesterday also I had shown you this graph, लेकिन आज भी ये ग्राफ दिखाना बहुत ज़रूरी है. I need to show you this graph children, because you will see the changing importance of these sectors. 40 years में कितना change हुआ है, just check it out children. Primary, secondary and tertiary 13-14 में कितना 73-74 का आप डेटा देखो, एंड 13-14 में दिस डेटा हैज़ रियली इंक्रीज्ड. अलार्मिंग सिचुएशन क्या था? अलार्मिंग सिचुएशन इज दिस, आई एम सॉरी, अलार्मिंग सिचुएशन इज दिस. ये ग्राफ जो है ना, दिस ग्राफ शुड नॉट गो सो लो. ये अगर लो चला जाएगा ना, इट विल हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन सेकेंडरी एंड टर्शियरी. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. दैट्स वाई दिस ग्राफ रियली नीड्स टू बी मेंटेन्ड. प्राइमरी को हमेशा ही ऊपर आते रहना है. सेकेंडरी का भी एरिया बढ़ा. यहाँ पे यू कैन सी द सेकेंडरी ऑल्सो कमिंग अप, एंड देन टर्शियरी. गॉट इट? सो दिस इज देयर. रिमार्केबल फैक्ट इंडिया के बारे में क्या है ना, कि 3 सेक्टर्स में देयर हैज़ बीन अ चेंज. ऑल ओवर चेंज इज देयर. ठीक है, ग्राफ के थ्रू ही. एनी टाइम व्हेन यू टॉक अबाउट जीडीपी, यू हैव टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. तो सिमिलर शिफ्ट हैज़ नॉट टेकन प्लेस. एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा कुछ चेंज नहीं आया है. ग्राफ 3 अब हम देख रहे हैं.
नहीं, आई मीन चेंज हैज़ कम, लेकिन जस्ट सी विच काइंड ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन विच सेक्टर। 3 सेक्टर्स दिया हुआ है, 72 73 का और 2011 12 का। तो प्राइमरी सेक्टर 72 73 की हालत देख लो। वही मैंने कहा ना, द सेम थ्योरी अप्लाइज। कुछ भी काम नहीं आता है, खेती का काम तो कर ही लेंगे। एनी वर्क इज नॉट देयर, तो डू द वर्क ऑफ प्राइमरी सेक्टर, agricultural sector, and get involved in the happening there. So this is very clearly showing, and secondary sector हम यहाँ पे देख रहे हैं. We can clearly find the secondary sector here, and then we find the tertiary sector here. ठीक है, टर्शरी सेक्टर में उस समय भी एम्प्लॉयड पीपल वेयर वेरी लेस, और अभी भी टर्शरी सेक्टर में कम एम्प्लॉयमेंट है. Can we decide and can we understand or try to understand why is this discrepancy there? ये ऐसा क्यों है कि टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट लेवल्स आर सो लेस? Employment level is so less because of the lack of education. लोग पढ़े लिखे नहीं हैं. That is the reason. Okay? Then you have the secondary. उसमें भी employment is less. Got it? और यहाँ देखो, एग्रीकल्चरल सेक्टर ने पहले भी सबसे ज़्यादा पीपल को एम्प्लॉय किया था. अभी भी द मैक्सिमम पीपल आर देयर इन प्राइमरी सेक्टर. गॉट इट? सो व्हेन वी सी दिस ग्राफ, मेनी थिंग्स आर वेरी क्लियरली अंडरस्टूड. दिस इज परसेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज. देखो दैट 72 73 में 15% पीपल वेयर इन टर्शरी सेक्टर, जो बढ़ के 27 हो गया, लेकिन स्टिल इट इज लेस टू कंपेयर एज कंपेयर टू प्राइमरी सेक्टर. ये तो 2011-12 का डेटा है. जस्ट चेक दैट दिस डेटा इज, एक तो 72 73 का है, दिस इज 2011-12 का डेटा. सो 2011 and 12 का डेटा, व्हेन दैट इज देयर, व्हेन वी आर सीइंग दिस डेटा, प्लीज अंडरस्टैंड कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो है, जहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को नौकरी मिली हुई है, जिस सेक्टर से लोगों के घर का खर्चा चल रहा है, माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ द प्राइमरी सेक्टर. गॉट इट? तो अब जितना भी डेवलप कर जाएं, हम लोगों के अंदर से ट्रेडिशनल चीज़ों को आसानी से नहीं हटा सकते हैं. We cannot remove the traditional techniques and methods of carrying on the lives of the people. लोग अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं तो ट्रेडिशनल मेथड से ही चला रहे हैं. गॉट इट? प्राइमरी वे से ही चला रहे हैं. सो दिस इज देयर, सिमिलर शिफ्ट इज देयर आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर in case of employment created in secondary and tertiary sector. सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में हमको काफ़ी सारे जॉब जो है वो नहीं मिल रहे हैं. अब क्या हो रहा है? इंडस्ट्रियल आउटपुट, प्रोडक्शन तो काफ़ी बढ़ गया. नाउ द प्रोडक्शन हैव इंक्रीज्ड 9 टाइम्स, 9 गुना बढ़ गया है. प्लीज़ अंडरस्टैंड, 9 टाइम्स इट हैज़ इंक्रीज्ड. ये ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये जो एक पीरियड है, इसमें वी फाइंड दैट सेकेंडरी सेक्टर इज डूइंग रियली वेल. Employment is there in this industry around 3 times, and same thing is there for the tertiary sector as well. लेकिन production has increased by 14 times, employment is around 5 times. अब यहाँ पे please understand, there are 2 things to understand कि 14 times increase हो गया है the production, लेकिन service is provided to the people just 5 times from that. 5 गुना को ही 14 गुना काम पे इन्वॉल्व किया गया है. So half of the workers in the country
आधे से ज़्यादा लोग किस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, विच सेक्टर दे आर वर्किंग इन? सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ द प्राइमरी. द सेम इज़ द थिंग. अनएजुकेटेड इलिटरेट पीपल कुछ भी काम जब नहीं सोच पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो अल्टीमेटली एक ही उपाय बचता है, एंड दैट इज़ द प्राइमरी वर्क, दैट इज़ द एग्रीकल्चरल सेक्टर. ओनली क्वार्टर ऑफ द जीडीपी का 25% जो है दैट इज एग्रीकल्चर. सो इसके कॉन्ट्रास्ट में क्या है, जस्ट सी द सेकेंडरी एंड द टर्शियरी सेक्टर्स, दे आर प्रोड्यूसिंग 4/5 ऑफ द प्रोड्यूस, लेकिन दे एम्प्लॉय लेस देन हाफ ऑफ द पीपल. एक एक आदमी से 12-12, 13-13 घंटा काम लिया जाता है. आप सोचोगे ना कि जब काम बढ़ रहा है भाई, तो तुम वर्कर्स भी तो बढ़ाओ, लेकिन एक ही आदमी से 4 आदमी का काम करवाते हैं. ओके, so this means that workers in agriculture are not producing as much as they could. जितना उनको प्रोड्यूस करना चाहिए उतना they are not producing. Please understand that. ठीक है, एग्रीकल्चर में there are more people than necessary. एक ही जगह पे in one agriculture जहाँ 5 लोग काम कर सकते हैं, वहाँ पे around 10 to 15 people are involved. ठीक है, when this is the situation, production will not be affected. Workers in the agricultural sector are underemployed. Please understand that the workers who are there, कम वर्कर्स की ज़रूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्कर्स इन्वॉल्व हैं, then it is called as underemployed. Got it? अब जैसे कि लक्ष्मी का केस ले लो, लेट्स सी द केस ऑफ लक्ष्मी. स्टोरी इज गिवन, एन इंसिडेंट इज गिवन, लेट्स अंडरस्टैंड इट. दैट लक्ष्मी इज ओनिंग 2 hectares ऑफ अनइरिगेटेड लैंड है, इसके पास 2 hectares. ठीक है, एंड रेन पे ही दे आर रेस्टिंग ऑन रेन. क्रॉप्स कौन सा ग्रो कर रहे हैं, ज्वार एंड अरहर. दे आर ग्रोइंग द क्रॉप्स ज्वार एंड अरहर. 5 members are there in the family. They work in the plot throughout the year. पूरे साल काम कर रहे हैं and कहीं नहीं जा सकते. They cannot go anywhere else. तो क्या हो रहा है, everyone is working. सारे लोग काम कर रहे हैं. Everybody is involved in the work. कोई भी खाली ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी and 4-5 people are going, बाकी के 4 लोग घर में बैठ रहे हैं. No. लेकिन देयर लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड. एक आदमी 2 मिलके जो काम कर सकता है, वही काम 5 लोग मिलके कर रहे हैं. सो लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड. ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुल्ली एम्प्लॉयड. कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन पूरा काम नहीं कर रहे हैं. People are working but all of them are made to work potential. हैं, अरे भाई एक ही आदमी एक ही जमीन पे 5 लोग जब काम कर रहे हैं, कितना काम कर लेंगे. इस तरह का जो एम्प्लॉयमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड एज अंडर एम्प्लॉयमेंट. इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट. अंडर एम्प्लॉयमेंट है, इट इज़ हिडन इन द कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब. अनएम्प्लॉयमेंट जिसके पास जॉब नहीं है, वो क्लियरली दिखता है कि हाँ भाई आदमी बेकार बैठा हुआ है, उसके पास काम नहीं है, सो द पर्सन इज अनएम्प्लॉयड. एंड दिख रहा है कि काम कर रहा है, बट इन रियलिटी काम नहीं कर रहा है. इन रियलिटी द पर्सन इज नॉट वर्किंग. देन इट इज कॉल्ड एज disguised unemployment. What is it called as? It is called as disguised unemployment. Got it? Please remember the concept. So Lakshmi ka, whenever you talk about the disguised unemployment, you need to mention about Lakshmi's example. So 2 terms that we need to understand today is underemployment. Workers in the agricultural sector are underemployment, you can say, or disguised unemployment, where it looks and it seems as if the person is working, but in reality the person is not working.
Are you getting my point? So these concepts you need to remember. Another thing that you need to remember is the percentage share of in different sectors in employment. कितने लोगों को एम्प्लॉय किया गया. आप वही चीज़ जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय पीपल आर मोर इन द प्राइमरी सेक्टर. सबसे ज़्यादा ग्राफ मुझे दिखाना था. दैट्स वाई आई हैड टू चूज दिस मोड वेयर डिस्कशंस हैव टू बी टेकन प्लेस विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ ओनली. Got it? That's why I had chosen this mode. I hope the things are clear to you now. One thing very frequently asked in the boards is the concept of disguised unemployment. Disguised unemployment का concept जो है वो बिल्कुल clear रखिएगा. Got it, children? So here I rest my voice. We'll be continuing in the next class. Till then, children, thank you so much and all the best to you.